معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے چودھری یاسین کے 22 سیٹ میں کیا کیا؟ 30 پولنگ اسٹیشن. میں نے سنا ہے الیکشنز میں جو زبردستی ہوتا ہے, کوئی لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں, کبھی کبھار اکا دکا 1-2 پولنگ اسٹیشن 3-4 پولنگ اسٹیشن میں دور دراز قبضہ ہوتا ہے, ایسی چیزیں کیے جاتے ہیں. آپ کا کچھ کو بھی ہو, مگر 30 پولنگ اسٹیشنز پہ قبضہ کرنا, جس کا جو ویڈیو ثبوت میں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سوشل میڈیا پہ ڈلوا دی, وہ تمام پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس بھی ہمارے پاس ہیں. دوسروں نے شیئر کیا, میں خود بھی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ وہ شیئر کروں گا. وہ 30 کے 30 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس موجود ہیں. اور جہاں باقی کوٹلی میں مشکل سے یہ 40 سے 50% تک پہنچتے ہیں, ان تمام پولنگ اسٹیشنز میں جہاں انہوں نے قبضہ کیا, جہاں انہوں نے تھپے یہ لگائے زبردستی, 99% ٹرن آؤٹ ہے. انشاءاللہ تعالی حق آپ کے ساتھ قانونی راستہ اپنائیں گے. اور قبضہ ہوا جو جاوید میدانتی میں کے حلقہ کے ریزلٹس ہے, جو ان کے جو فرق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ, مگر اس سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وائلنس استعمال کر کے, بندوق کے زور پہ دھاندلی کر کے جتنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں عوام ان سے نفرت کرتے ہیں, بس ناپسند نہیں, یہ نفرت تک بات پہنچ چکی ہے. اب پاکستان کے عوام آج ذکر نہیں کر رہا, ان کا تو اتنا مختلف رائے نہیں ہے, لیکن جو نفرت کرتے ہیں اس سیاسی جماعت سے جن کا وزیر کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ اور میر کوٹ کے عوام کشمیری نہیں, وہ نفرت کرتے ہیں اس سیاسی جماعت سے جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا قسمت کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں نہیں, ان کی جیب میں ہے. اور اس لیے کہ وہ عوام کے ووٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے, وہ چور دروازہ سے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ان کی بھول ہے. مظفر آباد سری نگر نہیں ہے, یہ مظفر آباد ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے, اپنا حق پہ ڈاکہ ڈالے. آپ نے ایک تو ہمارا کل کا جلسہ میں صاف پیغام ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم نے مل کے ایک آواز سے یہ زور دینا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. کشمیر کے عوام کو حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتے ہیں, اور اگر حق ملکیت اور حق روزگار دینا ہے تو یہ کوئی احتجاج سے نہیں ملتا, یہ کوئی بوائکاٹ سے نہیں ملے. آپ نے اگر اپنے حقوق لینے ہیں, اپنے حقوق حاصل کرنا ہے, تو الیکشن میں حصہ لے کے ووٹ ڈال کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوانا. اور ہم نے زور دینا ہے کل کی جلسہ کہ جو موجودہ بحران ہے اس کا علاج بھی, اس کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. ہم جو بحران ہے ختم کر سکتے ہیں, جو عوام کے لیے تکلیف اور مشکلات اور مصیبت پیدا کیے گئے ہیں, ہم انہی عوام کے خاطر ان کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اگر مانیں کہ ہم سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کریں جو کہ تحقیقات کریں, اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگا. جس نے اگر حکومت کی طرف سے, آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوا ہے, وہ ہم کسی چیز کو یہ سچ اور مفاہمت کمیشن سے نہیں چھپائیں گے. اگر میرا وزیر اعظم قصوروار اور ریکنسیلیشن وزیر اعظم راٹھور صاحب کو قصوروار قرار دیتا تو ہم تیار ہیں احتساب کے, لیکن تمام اسٹیک ہولڈرز
तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मानना चाहिए कि हम कमीशन कायम करें, फौरी तौर पे एहतजाज बंद करें और तय करें कि आगे जाके जब तक कमीशन का रिपोर्ट नहीं होगा कोई एहतजाज नहीं होगा। हम कश्मीर की आवाम को जीने देंगे। कश्मीर की आवाम को जो खाने पीने का, जो आटा का सामान, जो तेल का सामान, जो इंटरनेट का पाबंदी है, वो कमीशन तक कोई एहतजाज करने वालों की तरफ से भी ना कोई एक्शन हो, से वही एक्सपेक्टेशन होगा कि जब तक सच और मुफाहमत का कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करे, हक़ाइक़ सामने नहीं लेकर आए, तब तक आप मज़ीद कार्रवाई भी रोकेंगे। ये मेरे सामने, मेरी नज़र में वाहिद हल है इस बहरान का जो पैदा हुआ है। मुज़फ़्फ़राबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वोट चोरी नहीं होने देंगे और अपने वोट वापस लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी अवाम ही करेंगे, किसी और के पास इसका इख्तियार नहीं है। तशद्दुद और बंदूक के ज़ोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफ़रत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुज़फ़्फ़राबाद है, श्रीनगर नहीं। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा किया गया उसके फुटेज मौजूद है। ये चोर दरवाजे से आने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि धांधली करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है, अपने वोट पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। हम बहरान को ख़त्म कर सकते हैं, हम मसाइल आवाम के हल कर सकते हैं। कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए और कमीशन बनने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौजूद हैं, धांधली करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया उसके फुटेज भी मौजूद है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया उसके फुटेज हमारे पास है। ये मुज़फ़्फ़राबाद है, श्रीनगर नहीं है। धांधली नहीं करने देंगे। ये चोर दरवाजे से आने हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अपने वोट पर किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम बहरान को ख़त्म कर सकते हैं, हम आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी अवाम ही करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कमीशन बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहते हैं कि कमीशन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कसूरवार ठहराएगा तो हम उनके एहतसाब के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे पास 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौजूद हैं जहाँ पर धांधली हुई और धांधली करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो फुटेज भी मौजूद है जिनमें देखा जा सकता है कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह से कब्ज़ा किया गया। कहते हैं कि हम बहरान को ख़त्म कर सकते हैं, हम आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। कश्मीर बहरान का हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि जब ये कमीशन कायम होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहते हैं कि कमीशन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी अगर कसूरवार ठहराएगा तो हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी धांधली करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुज़फ़्फ़राबाद है, श्रीनगर नहीं है। ये चोर दरवाजे से आने वाले लोग हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा किया गया उसके फुटेज हमारे पास मौजूद है और हमारे पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। एक बार फिर से उन्होंने चौधरी यासीन के हवाले से बात करते हुए कहा कि उनके आबाई हल्के में जिस तरह से धांधली की गई है उसके तमाम तर शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। कहते हैं कि हम बहरान को ख़त्म कर सकते हैं, हम अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कश्मीर के बहरान का हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी ही करेंगे। कानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं कि हम इस बहरान को हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला करें। उन्होंने कहा कि धांधली के ज़रिए किसी को नहीं आने देंगे, धांधली करने की इजाज़त नहीं दे सकते। एक बार फिर से उन्होंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने का मुतालबा दोहराया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी कमीशन अपना फ़ैसला करेगा, चाहे वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ही कसूरवार ठहराए, हम उनके एहतसाब के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो इंतख़ाबात में धांधली हुई है उसका भी इजाला करना होगा। कहते हैं कि मेरे कारकुन को जब शहीद किया गया था उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम बहरान को ख़त्म कर सकते हैं, हम आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कश्मीरी बहरान
کشمیر کا بحران کا حل صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیری کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کمیشن اگر اپنے فیصلے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی قصوروار ٹھہرائے گا تو ہم ان کے احتساب کے لیے بھی تیار ہے۔